Hello dear students, welcome back to your science class. So today we will start chapter 6 of class 9 science, and the name of the chapter is tissues. And this chapter we have discussed up to the plant tissue, and I have also given you the summary of the animal tissue also. मैंने आपको plant tissue explain किया है और उसके बाद मैंने आपको जो एनिमल टिश्यू है उसका थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है. एंड टुडे विल डिस्कस द एनिमल टिश्यू इन डिटेल्स. ओके, सो एनिमल टिश्यू. व्हाट इज द एनिमल टिश्यू? द टिश्यूज व्हिच मेक अप द बॉडी ऑफ एन एनिमल. जैसा कि आपको पता है कि वी यूज द ब्रिक्स टू मेक अ वॉल. हम ब्रिक्स यूज करते हैं वॉल बनाने के लिए. सिमिलरली द सेल्स आर यूज्ड टू मेक आवर बॉडी. व्हेन दीज सेल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म टिश्यूज. जब ये सेल्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं एंड दे परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, दिस इज नोन एज द टिश्यू. तो टिश्यू क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ सिमिलर फंक्शन. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एनिमल टिश्यू की. तो एनिमल टिश्यू वही टिश्यू है जो एनिमल्स की बॉडी का पूरा में प्रेजेंट है एंड इट इज मेकिंग अप द एनिमल स्ट्रक्चर. एनिमल बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं, दीज आर 4 काइंड्स. आई हैव टोल्ड यू द 4 टाइप्स ऑफ द एनिमल टिश्यूज. द फर्स्ट वन इज एपिथेलियल टिश्यू. पहला जो टिश्यू होता है एनिमल बॉडी का, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू. द सेकेंड वन इज कनेक्टिव टिश्यू. द थर्ड वन इज मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू. ओके, तो हमारा जो फर्स्ट काइंड ऑफ एनिमल टिश्यू है दैट इज नोन एज एपिथेलियल टिश्यू. द सेकेंड वन इज नोन एज द कनेक्टिव टिश्यू. द थर्ड वन इज नोन एज द मस्कुलर टिश्यू एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज नोन एज द नर्वस टिश्यू. These 4 tissues are making the whole animal body. Now we will talk about the epithelial tissue. Epithelial tissue is the simplest type of animal tissue. Epithelial tissue animal tissue का एक simplest type होता है. It consists of simpler cells. इसके cells भी simple होते हैं. And here we are having a connective tissue. Connective tissue is a type of animal tissue which connects one organ to other. जैसे कि एक नेटवर्क होता है, आप कहीं कुछ नेटवर्क आप जानते हैं which connects one thing to other. ऐसे ही यहाँ पर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर there are some tissues which connect one organ of the body to the other. जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उसको एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ले जाने का, कनेक्शन का काम जो करता है, दैट इज द कनेक्टिव टिश्यू. सो द टिश्यू which connects the different organs is known as the connective tissue. Muscular tissue कौन सा होता है? Which makes up the muscles of the body. हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वहाँ muscular tissue आ जाएगा. In the nervous tissues, brain, spinal cord और nerves में present जो tissue है which helps in control and coordination, उसको हम nervous tissue बोलते हैं. For example, आप अपने hand में देखिए, you are having your hand. In your hand there is skin. ये skin क्या है? This is the simplest animal tissue or the epithelial tissue. हमारी जो ये hand है, इसमें जो skin है वो एक epithelial tissue है. Then you are seeing or you are feeling that there is a hard material called bone. आपको पता है आपकी bones है ये. Bones क्या है? This is a tissue. It's a connective tissue. We are having blood. It's also a kind of connective tissue. तो हमारे connective tissue भी वहाँ present है. उसके बाद आ जाता है muscular tissue. आपको पता है आपके muscles आ गया, तो ये जो muscles होते हैं ये muscular tissue से ही बने होते हैं. Then we have the nervous system. आपको पता है आपकी nerves जा रही है इस hand के through. That is the nervous tissue. तो हमारे different organs में ये different types के tissues जो है वो present हैं. So we will talk about them in detail. So let's take epithelial tissue.
सिंपलेस्ट टाइप का एनिमल टिश्यू है ये। इट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट्स, बट आप इसके जो मेन पार्ट्स पढ़ेंगे वो क्या है? द फर्स्ट वन इज स्क्वेमस एपिथेलियम। So you are seeing that there are four main types of epithelial tissue. Epithelial tissue different types का होता है, but according to the NCERT and your syllabus, you have to study only the four types of epithelial tissue, and these are squamous tissue, cuboidal tissue, columnar tissue, and stratified squamous tissue. So first of all is the squamous tissue. Squamous tissue कौन सा tissue होता है? It's a type of epithelial tissue which consist of flat and thin cells, जिसमें खाली flat और thin cells present होते हैं, बिल्कुल सिंपलर से flat और thin cells. That is known as the squamous tissue. तो squamous tissue एनिमल टिश्यू का वो पार्ट होता है या वो टाइप होता है which consist of very thin and flat cells, and that's why they are simpler and very thin. और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? स्क्वेमस एपिथेलियल इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ एंड इसोफेगस। जो हमारा फूड पाइप है और माउथ है उसकी इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्क्वेमस टिश्यू? द फंक्शन ऑफ द स्क्वेमस टिश्यू इज टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यूज or underlying part from dryness, and it provides the protection from mechanical injury. जो हमारी इंटरनल माउथ की स्किन है और इसोफेगस फूड पाइप है हमारा, उसको ये मॉइस्ट रखता है, क्योंकि ड्राइनेस से दे कैन हैव अ मैकेनिकल इंजरी, कुछ इंजरी वहाँ हो सकती है, तो उसको प्रिवेंट करता है। देन वी हैव द क्यूबॉइडल टिश्यू। इसके बाद आता है क्यूबॉइडल टिश्यू। क्यूबॉइडल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। इसमें जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं। दे आर नोन एज एंड टुगेदर दे मेक अप अ क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर, तो उसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहा जाता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ द क्यूब शेप्ड सेल इज प्रेजेंट इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। हमारे जो किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं वहाँ पर ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल प्रेजेंट होता है, एंड इट हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन एंड सेक्रीशन प्रोसेसेस। ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस में, क्योंकि किडनी का फंक्शन क्या है? एक्सक्रीशन, टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट है, सो इट विल हेल्प टू रिमूव दैट वन। देन वी हैव द कोलुमनर एपिथेलियल। कोलुमनर एपिथेलियल हमारे पास आता है, एंड कोलुमनर एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ द पिलर लाइक सेल्स। इसके जो सेल्स होते हैं वो पिलर लाइक होते हैं, थोड़ा लेंथी सेल्स इसके होते हैं, पिलर लाइक। दे आर हैविंग द पिलर लाइक स्ट्रक्चर। तो ऐसे सेल्स को से बनने वाला जो टिश्यू होता है दैट इज नोन एज कोलुमनर टिश्यू, एंड कोलुमनर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन, in our large and small intestine, where its function is the secretion and absorption। और इसका मेन फंक्शन होता है secretion करना, जैसा कि हमारी small intestine secrete कर रही है सब juices, their intestinal juices, और absorption जो कि हमारी large intestine करती है, it absorbs water, so they have the functions of absorption and secretion. Then we have the last one, that is the stratified squamous. Stratified squamous is a kind of squamous tissue. ये squamous tissue जैसा ही होता है, but इसकी जो layers होती हैं इस पे again the many layers of the squamous tissue are present. ये जो squamous tissue होता है इसी की layers बनना start हो जाती हैं, and when many layers of squamous tissues are present, they make up the stratified squamous. उसको ही हम stratified squamous कहते हैं। क्लियर है ये चीज? So we have the four types of epithelial tissue: squamous, cuboidal, columnar, and stratified squamous. Now we will talk about the connective
कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं अब। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच कनेक्ट्स वन बॉडी पार्ट टू अदर। एक बॉडी पार्ट को दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। ये बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग बोन, वी आर हैविंग कार्टिलेज, वी आर हैविंग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, we are having adipose connective tissue, we are having ligament, tendon, blood and lymph. Okay, we have these main 8 types of connective tissue। हमारे पास ये 8 connective tissues आ जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू कौन सा टिश्यू है? इट्स द कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट्स आवर स्किन टू मसल्स। हमारी स्किन को और मसल्स, इन दोनों को जो ज्वाइन करता है टिश्यू, दैट टिश्यू इज नोन एज द एरियोलर टिश्यू। तो एरियोलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स स्किन टू द मसल्स। स्किन को मसल्स से कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है? इट इज एरियोलर टिश्यू। नाउ वी हैव द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कौन सा टिश्यू होता है? एडिपोज टिश्यू इज द टिश्यू विच स्टोर्स फैट इन आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी में फैट्स को स्टोर करता है and which fills the spaces between the internal organs and the muscles। और हमारे muscles और internal organs के बीच की जो space होती है उसको भी, क्योंकि ये फैट स्टोर करता है तो फैट से उस space को ये fill कर देता है। ओके, then we have the bone। इसके बाद हमारे पास आता है बोन। बोन क्या करता है? बोन कनेक्ट्स आर वन ऑर्गन टू अदर। हमारा ये हैंड है, इसको शोल्डर से यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है। तो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा है, ये 2 बोन्स कनेक्टेड है हमारी। फिर हमारा जो पेल्विक गर्डल है उससे आपके जो है फीमर और डिफरेंट बोन्स ऑफ द लेग आर कनेक्टेड। तो एक तरीके का बोन्स आपका स्केलेटन, पूरा स्केलेटल सिस्टम आपका बनता है विद द हेल्प ऑफ बोन्स। तो बोन क्या कर रही है? बोन इज कनेक्टिंग आवर वन बॉडी ऑर्गन टू द अदर एंड इट हेल्प्स टू प्रोवाइड अस शेप एंड हेल्प्स इन आवर मूवमेंट। मूवमेंट में हेल्प करती है बोन, शेप प्रोवाइड करती है हमें, एंड इट एंकर्स द मसल्स आल्सो। देन वी हैव द कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? इट्स अ सॉफ्ट बोन। आप अपनी नोज को टच करिए, यू विल फील दैट कि नोज के अंदर जो बोन है दैट इज फ्लेक्सिबल। आपने ईयर को टच करिए, ईयर में भी यू विल सी दैट दिस बोन इज क्वाइट सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। जबकि आप अपने हाथ की बोन अगर चेक करेंगे तो इट्स नॉट फ्लेक्सिबल, इट्स वेरी हार्ड। तो यही चीज़ है, बिकॉज दिस इज बोन एंड दिस वन इज द कार्टिलेज। जो हमारे ईयर में और नोज में प्रेजेंट सॉफ्ट बोन होती है उसको ही हम कार्टिलेज कहते हैं। एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द रीजन्स और द ऑर्गन्स वेयर देयर इज अ मूवमेंट नीडेड। आपको पता है कि नोज के थ्रू आपकी एयर को अंदर जाना है और ईयर्स के थ्रू आपकी साउंड को अंदर जाना है। सो दैट्स व्हाई ड्यू टू दैट मूवमेंट दिस इज फ्लेक्सिबल एंड दैट इज कार्टिलेज। तो ऐसे रीजन्स में कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। देन वी हैव द लिगामेंट। अब वन बोन इज कनेक्टेड टू अदर बोन। आपको पता है एक बोन दूसरे बोन से कनेक्ट हो रही है, तो बोन से बोन को कनेक्ट करने वाला टिश्यू कौन सा है? लिगामेंट। जो हमारे जॉइंट्स है यहाँ पे प्रेजेंट होता है लिगामेंट, बिकॉज एट द जॉइंट one part is connected to other, so the tissue here is the ligament। तो ligament कौन सा टिश्यू है? ligament is the tissue which connects one bone to the other। then we have the tendon। tendon is the tissue which connects muscle to the bone। जो एक muscles को हमारे bone से connect किया हुआ है उस टिश्यू को हम बोलेंगे that tendon।
उसके बाद आ जाता है आपका ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड एंड लिम्फ जो होते हैं ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ब्लड हमारे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। ब्लड इज रेड कलर्ड कनेक्टिव टिश्यूज whereas the lymph is a colorless tissue। ब्लड और लिम्फ के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, स्पेशली द ब्लड। ब्लड contains many components। ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यू हैव स्टडीड अर्लियर आल्सो। ब्लड कंसिस्ट ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। एंड अमंग these 3 आर इन सॉलिड स्टेट। ये तीनों के तीनों सॉलिड स्टेट में है, जबकि जो प्लाज्मा होता है आपका दैट इज इन लिक्विड स्टेट। और इसी की वजह से ही आपका जो ब्लड है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। आरबीसी होते हैं रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कॉर्पसेस। द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड। क्योंकि आरबीसी रेड किसकी वजह से है? ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आपने हीमोग्लोबिन नाम सुना होगा। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट होता है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है और उसी की वजह से ब्लड का कलर जो है वो रेड है। लाइक द लीव्स आर कंटेनिंग क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीव्स का कलर ग्रीन है। ऐसा ही एक पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन जो कि रेड कलर का है और जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का है। कहाँ प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन? आरबीसी में। सो दैट्स व्हाई द फंक्शन ऑफ आरबीसी इज टू कैरी ऑक्सीजन, क्योंकि हीमोग्लोबिन भी ऑक्सीजन को कैरी करता है। एंड वी हैव देन व्हेन वी हैव द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन देन वी हैव द लैक ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो। जब हीमोग्लोबिन में कमी आती है तो ऑक्सीजन रेट भी कम हो जाता है, बिकॉज इट इज कैरिंग द ऑक्सीजन एंड वी फील टायर्ड और हमें चलने में प्रॉब्लम होने लगती है, सांस फूलने लगता है, बिकॉज आवर लंग्स रिस्पायर मोर फास्टली, हमारा ब्रीदिंग रेट बिकम्स फास्टर। Now we have the WBCs। WBCs क्या है? These are white blood cells or white blood corpuscles। WBCs का फंक्शन होता है the known as soldiers of the body। Like soldiers are protecting our country, ऐसे ही WBCs are protecting our body। जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, सपोज अ बैक्टीरिया एंटर्स योर बॉडी, देन WBC फाइट विद दैट बैक्टीरिया एंड यू डू नॉट गेट इल। आप बीमार नहीं पड़ते हैं। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू आर नॉट हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ और द प्रॉपर अमाउंट ऑफ द WBCs, देन you will not be able to fight with the foreign materials and you will fall ill। आप बीमार जल्दी पड़ेंगे। आपने देखा जब कोई कम्युनिकेबल डिजीज चलती है, इवन इन योर क्लास सिंपली कॉमन कोल्ड और कफ देख लीजिए आप और एनी काइंड ऑफ फीवर, तो आप देखेंगे कुछ बच्चे तो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ जो है उनको वो बीमारी पास बैठने के बाद भी नहीं लगती है। व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज़ दे आर हैविंग अ गुड इम्यून सिस्टम। उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिनको बीमारी नहीं होती है। उनके WBCs दे फाइट विद इन्फेक्शंस और पता भी नहीं चलता है उनकी बॉडी में कोई इन्फेक्ट्स आते ही नहीं है। जबकि कुछ बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक होता है एंड दे फॉल इल इजीली। ओके, सो दैट्स अ वर्क ऑफ WBC। देन वी हैव द प्लेटलेट्स। इसके बाद आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? दीज आर द टाइनी फ्रैगमेंट्स ऑफ द ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स के टाइनी फ्रैगमेंट्स या टुकड़े होते हैं ये, जिनको प्लेटलेट्स कहा जाता है। एंड प्लेटलेट्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है दे हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। आपने देखा होगा कभी आपको एक छोटा सा कट लगता है तो आपका ब्लड स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम देयर, वहाँ से आपका खून निकलने लगता है। बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट देयर इज अ हार्ड लेयर ऑफ द ब्लड देयर और आपका जो ब्लड है वहाँ से निकलना बंद हो जाता है। दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेटलेट्स। आपकी बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं ब्लड के अंदर, वो जैसे ही उनके अंदर एक प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, व्हेन इट रिएक्ट्स विद एयर, तो एयर के साथ वो कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जम जाता है और ब्लड जमने से ही ब्लड का जो फ्लो है फर्दर वो रुक जाता है। और अगर ये ना होता तो आपका ब्लड छोटे से कट से ही बहुत सारा ब्लड लॉस आपका हो सकता है। ओके, देन वी हैव द प्लाज्मा। प्लाज्मा लिक्विड कंपोनेंट है ब्लड का एंड इट हेल्प्स टू कैरी द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। अब बॉडी के अंदर या ब्लड मेनली लिक्विड इसकी वजह से है, ब्लड का फंक्शन कैरिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स भी है। वो न्यूट्रिएंट्स या ऑक्सीजन क्यों कैरी हो रही है? बिकॉज ब्लड इज इन लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट में किसकी वजह से है? प्लाज्मा की वजह से। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। ऐसे ही अब
स्पेशल टाइप के जो ये WBCs होते हैं दे फॉर्म लिम्फ। स्पेशल टाइप के ही जो WBCs हैं उनको लिम्फोसाइट्स कहा जाता है एंड लिम्फोसाइट्स मेक द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिम्फ। क्योंकि ये WBC है, कलरलेस है, सो दैट्स व्हाई द लिम्फ इज कलरलेस एंड इट वर्क्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द ब्लड। ये ब्लड के पैरेलल काम करता है बट in the opposite direction because the function of lymph is to remove the toxins from the body। बॉडी से टॉक्सिन्स का रिमूव करने का काम करता है lymph, तो किडनी तक जाता है, रिमूवल कर देता है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करेगा। दूसरा lymph का फंक्शन होता है न्यूट्रिटिव प्रोसेस में ब्लड के साथ हेल्प करना, उसके पैरेलल वर्क करना, so that is the function of lymph। Now our connective tissue is over, we will talk about the muscular tissue। अब हम बात करेंगे muscular tissue की। muscular tissue क्या है? It's a tissue which makes up our muscles, और muscular tissue में muscles जो है हमारे they are of 3 types। We are having 3 types of muscles। One is striated muscles जिनको हम involuntary भी कहते हैं। Second we have the unstriated muscles and third we have the cardiac muscles। ओके, तो striated muscles कौन से muscles होते हैं? Which are under our control। हमारे उन body parts के muscles striated muscles कहलाए जाते हैं which are under our control, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, which are under our control। हम चाहें तो अपने हाथ से जो चीज़ उठाना चाहते हैं वो उठाएंगे, नहीं उठाना चाहते हैं नहीं उठाएंगे। If you want to write, we will write। If you don't want to write, we will not write। So the hands and the legs and our tongue और the lower jaw, they are under our control। ये हमारे कंट्रोल में है। ऐसे पार्ट्स के जो मसल्स होते हैं they are known as the striated और the voluntary muscles। क्यों कहते हैं उसको striated? क्योंकि जो उसकी शेप होती है उसमें ये striations होती हैं, ये लाइंस जो होती है इन्हें striations कहा जाता है और इसी की वजह से they are known as the striated muscles। ये stripes सी इसमें हो रही है तो striated muscles इसको कहा जाता है and it is present at the voluntary regions। जो भी हमारे कंट्रोल में ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स पे जो मसल्स प्रेजेंट होंगे वो striated muscles कहलाए जाएंगे and they will work according to our will। हमारे कंट्रोल में काम करेंगे। unstriated कौन से होते हैं? Opposite to the striated। striated हमारे कंट्रोल में काम करते हैं and unstriated doesn't work under our control or our will। ये थोड़ा स्पिंडल शेप्ड होते हैं। अगर हम शेप की बात करें तो these are the spindle shaped cells। इसके जो सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं इस तरीके के। अनस्ट्राइटेड में क्योंकि ऐसे स्टेप्स उसमें नहीं है एंड दे आर इनवॉलंटरी, मीन्स ये ऐसे मसल्स होते हैं जो हमारे उन पार्ट्स पे प्रेजेंट होते हैं विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अदर देन आर हार्ट इन द ब्रेन। क्योंकि ब्रेन में नर्वस टिश्यू आ जाता है और हार्ट में आपका कार्डियक मसल्स आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपका ये टिश्यू नहीं होगा। अदरवाइज अदर इंटरनल ऑर्गन्स कंटेन दैट अनस्ट्राइटेड टिश्यू। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें अपनी एलिमेंट्री कैनाल की, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वहाँ डाइजेशन अपने आप होगा। हमारा फूड चला गया एसोफेगस के थ्रू स्टमक में, देन द फूड विल गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, वो अपने आप डाइजेस्ट होगा। इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। अगर हम चाहें हमें इस टाइम डाइजेशन करना है, जब हम चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। द डाइजेशन विल टेक प्लेस ऑन इट्स ओन बिकॉज इट्स नॉट अंडर आवर कंट्रोल। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अनस्ट्राइटेड मसल्स। और अनस्ट्राइटेड मसल्स हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में आ जाएंगे एंड अदर डिफरेंट ऑर्गन्स आल्सो व्हिच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल। देन वी हैव द कार्डियक मसल्स। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स जो होते हैं कार्डियक मसल्स आर द टाइप ऑफ मसल्स विच मेकअप आर हार्ट। जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं, क्योंकि हार्ट एक स्पेशल ऑर्गन है हमारा, इट कम्स आउट थ्रू आउट द लाइफ, सो दैट्स व्हाई दे नीड अ स्पेशल काइंड ऑफ द टिश्यू, सो दे आर द कार्डियक टिश्यूज। स्ट्राइटेड हमारे कंट्रोल वाले ऑर्गन्स में होंगे, अनस्ट्राइटेड उन पार्ट्स में होंगे विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, और कार्डियक हमारे हार्ट में प्रेजेंट होंगे।
ये जो मसल्स होते हैं दे कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली थ्रू आउट द लाइफ ये रिदम के साथ काम करते रहेंगे, और जब तक पर्सन अलाइव रहेगा द कार्डियक मसल्स विल नॉट गेट फटीग एंड दे विल कंटिन्यू टू रिदम हियर. Now we have the last type of the animal tissue, and that is the nervous tissue. Last tissue हमारा आता है nervous tissue. Nervous tissue is a group of our nerve cell which is known as neuron. Nervous tissue क्या है? It's a group of neuron. Neuron आपने पहले भी पढ़ा है class 8 also. न्यूरॉन इज आर नर्व सेल, और सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा है नर्व सेल को न्यूरॉन कहा जाता है. दिस इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी का ये लॉन्गेस्ट सेल होता है. इसमें क्या है आपका? इट कंसिस्ट ऑफ डेंड्राइट्स. इसमें डेंड्राइट्स होते हैं. Look here. This is a neuron. ये क्या है? ये हमारा नर्व सेल या न्यूरॉन है. इसमें हमारी जो ये आउटग्रोथ्स दिख रही है बाहर, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. दिस इज न्यूक्लियस, और ये होल पार्ट जो होता है दैट इज नोन एज साइटोन और सेल बॉडी. उसको साइटोन या सेल बॉडी कहते हैं. ये जो लॉन्ग ट्यूब आप देख रहे हैं दिस इज नोन एज द एक्सिन. इसको हम एक्सिन बोलते हैं. एंड आफ्टर दैट वी हैव द नर्व एंडिंग्स. उसके बाद हमारा आ जाता है नर्व एंडिंग्स. सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन. वन इज साइटन जिसमें न्यूक्लियस सेल और डेंड्राइट्स होते हैं. साइटोप्लाज्म होता है ये सारा. देन वी हैव द एक्सन व्हिच इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. देन वी हैव द नर्व एंडिंग्स व्हिच आर द एंड पॉइंट ऑफ द न्यूरॉन. क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द डेंड्राइट्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर और आउटसाइड आवर बॉडी. जो हमारे एटमॉस्फेयर से सिग्नल्स मिलते हैं, सपोज हीट का सिग्नल है, एक स्टिमुलस है, तो वो कौन रिसीव करेगा? डेंड्राइट्स विल रिसीव दैट. It will move to the cyton. वो cyton पे पहुंचेगा. Here the interpretation takes place and the electrical impulses move through the axon. Electrical impulses axon से move करेंगी. Then they will pass to the nerve endings. वो nerve endings पर pass करेंगी, और इन्हीं nerve endings पे there is another neuron. यहीं पे ही एक दूसरा न्यूरॉन इससे ऐड होता चला जाएगा. एंड इन दिस वे बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इकट्ठा हो वो कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड दे आर स्प्रेडिंग थ्रू आउट आवर बॉडी. ये जो गैप यहाँ पे आता है जब ये दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं दैट इज नोन एज अ साइनेप्स. और साइनेप्स की वो गैप है जहाँ पे इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाती है. इसी तरीके से इंफॉर्मेशन जाती चली जाती है. यू टच अ हॉट प्लेट विद योर हैंड, तो आपके वहाँ के डेंड्राइट्स, स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स तक पहुँचाते हैं. अब डेंड्राइट्स जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी तक लेके जाता है. देन सेल बॉडी टू द एक्सन, देन एक्सन टू द नर्व एंडिंग्स, और नर्व एंडिंग पे वो दूसरे न्यूरॉन पे चले जाते हैं साइनेप्स पर. तो इस तरीके से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में हमारी बॉडी में मैसेजेस का आना जाना होता है. मैसेजेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ऑर्गन्स टू द ब्रेन एंड देन फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन्स. आपको पता है कि नर्वस सिस्टम जो है इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स, और वही सब यहाँ न्यूरॉन से बना हुआ है सब कुछ, और न्यूरॉन के बारे में हमने स्टडी कर ही ली है. सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एनिमल टिश्यू. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. प्लीज गो थ्रू ऑल दिस कंटेंट and ask your problem wherever necessary. Have a very wonderful day, beta.